Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 19th of January 2021, Tuesday. Inspiration of the day is our goals can only be reached through the vehicle of a plan. There is no other route to success. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Special window for big ticket foreign investments likely. So, in upcoming budget, government may announce special window for strategically important investors. तो इंडिया में जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उसको प्रमोट करने के लिए आगे आने वाले बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के प्रोविजन को लेकर के आ रही है एंड इट इज मोस्ट लाइकली दैट दिस पर्टिकुलर सिंगल विंडो will be announced on February 1. That is the scheduled day for budget presentation. So अब यहाँ पर कुछ जो terminologies हैं terms हैं that become very important. One is what is a spatial window. Second is what is strategically important investor. And third is what is foreign investment. तो एक एक करके हम इन तीनों ही concepts को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, आई एम नॉट गोइंग इनटू very complex classification. In a very simple manner, we can classify foreign investment into two parts, that is FDI or FPI. We all know the full form of FDI, that is foreign direct investment, and FPI stands for foreign portfolio investment. तो basically किसी भी country में foreign investment generally दो forms में आता है, FDI के form में या फिर FPI के form में. तो अब दोनों में difference क्या होता है? अगर की differences की बात करें तो 5 से 6 की डिफरेंसेस होते हैं. अदरवाइज प्रोसीजर, अप्रूवल, अमाउंट, कंट्रोल, मोड, सेक्टर, इम्पोर्टेंस, टेक्नोलॉजी, सोर्स, इन सब के बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई और एफपीआई भी बोलते हैं. एफआईआई, एफपीआई अप्रोक्सीमेटली सेम थिंग्स होते हैं. थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, दैट इज नॉट एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. Actually, FII is one of the part of FPI. Apart from FII, there are certain other sort of investment that comes under FPI. तो वो हम यहाँ भी फिलहाल के लिए डिस्कस नहीं करेंगे. अभी हमारा मेन मोटिव है कि what is the key difference between FDI and FPI और FII. जैसा कि हमें स्क्रीन में दिख रहा है, FDI is basically that type of foreign investment that brings capital into a country or an economy to the or through the setup of a production unit or some other facility. It may be any physical asset investment. So FDI gives the foreign company some control in the operation of the company. तो किसी भी physical form में, physical asset में, it may be land, it may be building, it may be machinery. इसमें जिस तरह का investment आता है foreign से या foreign investment in जब modes में investment करता है, that sort of investment is called as FDI. इसको ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इसमें. मतलब बहुत की टर्म में अगर किसी फिजिकल एसेट में फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट इज एफडीआई. एफआईआई और एफपीआई क्या होता है? बेसिकली व्हेन एनी फॉरेन कंपनी बाइज द इक्विटी और द शेयर इन अ पर्टिकुलर कंपनी ऑफ अनदर कंट्री. जब शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, then that particular investment is called as FII और FPI. जाहिर सी बात है, अगर FDI की बात करें तो FDI में अगर कोई भी कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही है मशीनरी में, बिल्डिंग में, लैंड में, प्रोडक्शन में, so that particular foreign company will exercise certain amount of control in the operation of the particular investment company. On the other hand, FII और FPI के केस में इतना कंट्रोल नहीं होता. कि कोई शेयर होल्डर है, किसी ने 10% कंपनी के शेयर खरीद लिए, 5% कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है उस फॉरेन इन्वेस्टर का इंडिया की किसी कंपनी पे कोई भी अमाउंट का कंट्रोल हो अपार्ट फ्रॉम द वोटिंग राइट्स. तो ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता एफपीआई के केस में. जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनका एफपीआई के केस में या एफआई के केस में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन में कंट्रोल नहीं रहता है. जाहिर सी बात है. अब एफडीआई पे आते हैं.
अगर एफडीआई कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में मशीनरी में, लैंड में, प्रोडक्शन फैसिलिटी में सेटअप कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो इतनी जल्दी यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकता। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इतनी ईजिली पॉसिबल नहीं कि किसी इन्वेस्टर ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में मशीन इंस्टॉल करी या प्रोडक्शन फैसिलिटी इंस्टॉल करी या बिल्डिंग में पैसा लगाया, सडनली उससे एग्जिट कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वेयर एज एफपीआई और एफआईआई इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। वाई? Because selling the shares and stocks are comparatively easier than the selling building machinery or any other form of physical asset. तो हम ये कह सकते हैं FPI is short term investment, FDI is basically for long term investment. पहले हुआ करता था एक डिस्टिंक्शन, ऐसा माना जाता था कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, उसके शेयर्स का 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट विल बी कंसीडर्ड एज एफडीआई बिकॉज इट इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स इनटू दैट इंडियन कंपनी और इनटू दैट कंपनी दैट इज ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो पहले ऐसा क्लासिफिकेशन था कि 10% से ऊपर का जो भी इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी ट्रीटेड एज एफडीआई, और 10% से अगर नीचे का कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो दैट विल ऑटोमेटिकली कम अंडर एफपीआई और एफआईआई। ऑल्दो अब ये डिस्टिंक्शन जो है वो ब्लर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं रहा है। बेसिकली अब इसको इसी तरह से क्लासीफाई करते हैं कि किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, मशीनरी, बिल्डिंग या किसी प्रोडक्शन फैसिलिटी में इन्वेस्ट किया है, ईदर बाई greenfield investment or by brownfield investment, that particular investment is called as FDI। 10% की जो threshold था ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जनरली एफडीआई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टर का कंपनी पर के ऑपरेशंस में डायरेक्ट कंट्रोल होता है। दैट इज़ वाई दीज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू एफपीआई। एफपीआई के कंपैरिजन में एफडीआई इज मोर स्टेबल, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, बहुत जल्दी जो इन्वेस्टर होता है इससे एग्जिट नहीं करता, स्टेबल होता है। जबकि एफपीआई के केस में इट इज़ लेस स्टेबल। वाई? बिकॉज इट इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल। जब शेयर मार्केट डाउन हो रही है तो जो भी एफपीआई इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लगेगा कि भाई मार्केट डाउन हो रही है, देन वाई टू इन्वेस्ट इनटू दैट कंपनी, दे इमीडिएटली स्टार्ट सेलिंग ऑफ देयर स्टॉक्स एंड दे एग्जिट द मार्केट। दैट इज वाई समटाइम एफपीआई इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉट मनी। हॉट मनी मीन्स जब भी इन्वेस्टर चाहेंगे दे कैन ईजिली एग्जिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई एंट्री और एग्जिट बैरियर नहीं होते। जबकि अगर एफडीआई की बात करें, ये स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे एंट्री और एग्जिट बैरियर होते हैं। एफडीआई करना भी बहुत आसान नहीं होता, और एफडीआई वंस एफडीआई इज डन इट्स नॉट वेरी इजी टू exit from that investment because of certain barriers, certain rules and regulations that are applicable on FDI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री और एग्जिट बैरियर जो होते हैं वो एफडीआई के केस में ज़्यादा होते हैं, एफपीआई और एफआईआई के केस में इतने एंट्री और एग्जिट बैरियर नहीं होते हैं। कैसे? अगर इसको और सिंपल तरीके से समझें तो अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है, उसने एक बहुत बड़ा मॉल सेटअप किया, मॉल में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आए, पहले लैंड खरीदा, बिल्डिंग इरेक्ट करी, देन उसमें ऑपरेशन स्टार्ट किया, रिक्रूटमेंट किया, एम्प्लॉय आ गए, वर्किंग हो गई। सडनली इकोनॉमी में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि उस पर्टिकुलर एफडीआई, वो जो इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर था, उसको लगा कि इस पर्टिकुलर इकोनॉमी से एग्जिट कर जाना इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि आगे आने वाला टाइम इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। तो क्या उसके लिए इतना आसान होगा कि उस बिल्डिंग को बेच करके, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ करके इमीडिएटली वो वहाँ से एग्जिट कर जाए? नहीं, देयर आर सर्टन टाइप ऑफ बैरियर। एंट्री में भी बैरियर होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर बहुत डिफरेंट बैरियर्स होते हैं। एफडीआई के लिए किसी में लिमिट सेट कर दी जाती है कि 49% से ज़्यादा एफडीआई नहीं होगा या 30% से ज़्यादा एफडीआई नहीं होगा। किसी किसी सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ होता है। इसीलिए ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर 100% एफडीआई अलाउ नहीं होता, वहाँ पर अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको किसी डोमेस्टिक कंपनी से या तो जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, या उसका एक्विजिशन करना पड़ेगा, या फ्रेंचाइजी, लाइसेंसिंग, इन सब के मोड के थ्रू कंपनीज एंटर करती हैं अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एफडीआई लिमिट 49%, 30% या 20% होती है। तो इसीलिए एंट्री बैरियर भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेक्टर जो हैं वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए सेव करके रखे गए हैं, वहाँ पर
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू, दैट इज़ वाई हाई एंट्री बैरियर, एंड वंस इन्वेस्टमेंट इज डन एग्जिट भी बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है, क्योंकि बिल्डिंग में, मशीनरी में, लेबर में इन्वेस्टमेंट करना और फिर लेबर को ले ऑफ करके इमीडिएटली एग्जिट कर पाना, इट इज़ नॉट very much easy. That is why FDI is more stable and long term capital. तो जो FDI से इन्वेस्टमेंट आता है दैट जनरली कम्स इन प्राइमरी मार्केट, वेयर इज इन्वेस्टमेंट कम्स थ्रू FPI और FII जनरली कम्स इन सेकेंडरी मार्केट। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि FDI जो है, अगर कंपैरेटिव स्टडी करी जाए, कंपैरिजन स्टैब्लिश किया था, तो इट इज सेट कि FDI इज मोर गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इट इज़ जनरली कॉल्ड एज द क्रिटिकल ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एनी इकोनॉमी, क्योंकि इससे टेक्नोलॉजी भी आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, लॉन्ग टर्म आता है, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होता कि इमीडिएटली इन्वेस्टर पुल ऑफ कर लेंगे देयर मनी, और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या जो अदर पॉलिसी रेट्स हैं दे विल फ्लक्चुएट, या इकोनॉमी की जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट करेगी, शेयर मार्केट फ्लक्चुएट करेगी, ऐसा कोई रिस्क नहीं होता इन कंपैरिजन टू FPI। तो जनरली FPI इज गिव इम्पटस टू द इक्विटी मार्केट ऑफ अ कंट्री, शेयर मार्केट को बूस्ट करने के लिए, शेयर मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज more important, but certain economists or strategists consider FDI as a good form of investment, although many of have their different views in this regard. So I hope the difference between FDI and FPI is clear now. नाउ कम्स बैक टू द न्यूज़। तो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर ईयर के जो बजट में, अपकमिंग बजट है, उसमें एक स्पेशल विंडो, कभी कभी आप स्पेशल विंडो को सिंगल क्लियरेंस विंडो के नाम से भी जानते हैं, प्रोवाइड करेगी। स्पेशल विंडो की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, किसको प्रोवाइड करेगी? स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए? दो क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करते हैं, ईदर दे आर वेरी लार्ज बिग इन्वेस्टमेंट, बहुत अमाउंट, बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई एवरी कंट्री वॉन्ट्स टू टैप दैट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा, कोई भी कंट्री ऐसा FDI इनफ्लो जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट का है उसको खोना नहीं चाहेगी। तो पहला क्राइटेरिया, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। दूसरा, दैट जनरली कम्स फ्रॉम एनी सॉवरेन फंड और एनी पूल्ड फंड, दैट जस्ट लाइक पेंशन फंड, क्योंकि अगर कोई बड़ा अमाउंट है तो कोई छोटे मोटे कॉरपोरेशंस इस पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी अदर कंट्री में। देयर शुड बी एनी सॉवरेन वेल्थ फंड, सॉवरेन मीन्स किसी गवर्नमेंट से लिंक्ड कोई फंड हो, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट कर रही हो, जैसे लाइक सऊदी अरेबिया के केस में अगर कोई क्राउन की साइड से कोई इन्वेस्टमेंट आता है, that is called as sovereign fund. Sovereign means that particular fund does not belong to any corporation, it belongs to any country or any sovereign body जिस पर उसका पूरा का पूरा राइट है उस फंड पर। तो दो क्राइटेरिया, सोवरेन वेल्थ फंड या कोई बड़ा पूल्ड फंड हो, जस्ट लाइक पेंशन फंड और PF फंड, और दूसरा जनरली इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो यहाँ पर क्या लिमिट लगाई गई है? बेसिकली इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट में बताया गया है कि सोवरेन फंड्स, पेंशन फंड, ऐसे सोवरेन पेंशन फंड्स जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लाएंगे इनटू अ सिंगल ट्रांजैक्शन, सो दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स विल बी ट्रीटेड अंडर स्पेशल विंडो क्लियरेंस। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, आप कहेंगे मैम थोड़े से स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? डेफिनेटली, कनाडा पेंशन फंड, CDPQ, GIC सिंगापुर, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अगर आपने अभी नाम सुना भी होगा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का, एंड Temasek, Singapore. All these are the few examples of sovereign fund or strategically important fund, because these types of foreign investors generally bring a huge amount of money, huge sum of money as investment. और जो recent
प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट हुई हैं, जो वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं इन द अर्ली नवंबर, इट हैज़ बीन नोन दैट ऑल दीज फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव फेथ इन गवर्नमेंट रीसेंट इनिशिएटिव एंड रिफॉर्म्स। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को पता है कि दैट दीज ऑल दीज सर्टन टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव पॉजिटिव अप्रोच और ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी, then why do not tap their investment? Why do not tap this opportunity by providing them the special window or single window clearance so that their investment in India can be smoothened? Though this window, foreign funds would receive a response from the government within 3 days, so that the proposal can be fast track and all the for strategically important foreign investment can be easily tapped in. Also, the window will act as a point of contact between the investors and the various ministries and department concerned. तो एक सिंगल विंडो बनाई जाएगी, उस सिंगल विंडो में ही सारे क्लियरेंस मिल जाएंगे। मैक्सिमम मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जिनका रोल होता है इन्वेस्टमेंट को क्लियरेंस देने में, वो सारे अप्रूवल देने में, वो सारे जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, दे विल वर्क इन टैंडम, दे विल वर्क इन कोलैबोरेशन इन ऑर्डर टू स्मूथ द इन्वेस्टमेंट that is above than 300 crore in a single transaction. And if we talk about the easing the process, basically this type of single window is for FDI investment, not for FIE। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज FDI। तो सिंगल कॉन्टेक्ट पॉइंट फॉर FDI अप्रूवल। 3,000 करोड़ से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ सिंगल क्लियरेंस विंडो। मूव टू रिड्यूस द टाइम फ्रेम फॉर अप्रूवल विच टिपिकली टेक्स 1 to 3 months। 1 से 3 महीने लगते हैं जिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को अप्रूव होने में, वो आप सोचिए 3 दिन में गवर्नमेंट अप्रूव करने की बात कर रही है। सो इट मीन्स मेकिंग इंडिया मोर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, रिड्यूसिंग द रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। And if we talk about the gross FDI inflow in India since financial year 2015, तो हम देख सकते हैं there is a high amount of fluctuation, कभी ज़्यादा कभी कम। although financial year 20 में सबसे ज़्यादा foreign investment देखने को मिला है, दो 21 का अभी exact data नहीं आया, but it is expected that it is at the level of financial year 15 because of, definitely because of COVID-19 pandemic। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5, रेस टैक्स डिडक्शन लिमिट नॉन लाइफ इंश्योरर्स। सो अहेड ऑफ यूनियन बजट 2020, which is less than a fortnight away, non-insurance have suggested that government increase the tax deduction limit under section 18D of income tax एक्ट। जैसा कि हम कई दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि प्री बजट डिस्कशंस बहुत जगह चल रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिकमेंडेशंस, अपने सजेशन गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि आगे आने वाले जो बजट में क्या क्या फोकस पॉइंट होना चाहिए, क्या क्या इम्पॉर्टेंट मूव्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए, कैसे इकोनॉमिक स्टेप्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू रिकवर द इकोनॉमी, इन ऑर्डर टू रिकवर द डिफरेंट सेक्टर दैट आर एक्चुअली वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस पैंडेमिक। इट इज़ वन इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एविएशन, रिटेल सेक्टर। तो आपने देखा हो कई टाइम से हम इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, दे आर सजेस्टिंग गवर्नमेंट few रिकमेंडेशन दैट इन ऑर्डर टू रिवाइव देयर सेक्टर दीज शुड बी द गाइडलाइंस, दीज शुड बी द सजेशंस, दीज शुड बी द स्टेप्स। तो अब फिलहाल के लिए इंश्योरेंस, जो नॉन इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, दे आर सजेस्टिंग गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट जो टैक्स एजम्पशन, टैक्स डिडक्शन लिमिट प्रोवाइड करती है अंडर सेक्शन 18D ऑफ इनकम टैक्स फॉर अवेलिंग द नॉन इंश्योरेंस स्कीम, उस पर्टिकुलर लिमिट को गवर्नमेंट को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट लिमिट इंक्रीज़ कर देगी तो क्या होगा? तो ये होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल अपने टैक्स को रिड्यूस करने के लिए, टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, कम टैक्स पे करने के लिए, दे विल बाई मोर नॉन लाइफ इंश्योरेंस scheme. So this, they said, would provide fresh impetus to the people to buy a comprehensive health cover। इंडिया में अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस को अगर हम थोड़ा छोड़ दें, तो जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है वो बहुत ही कम है, बहुत डेसिमल अमाउंट ऑफ, और कहते हैं डेसिमल परसेंटेज ऑफ पब्लिक इन इंडिया इज एक्चुअली insured in comparison to the other counterpart economies of इंडिया। तो इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस से बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं होते, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस की फैसिलिटी या स्कीम्स को अवेल नहीं करते।
और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया, पैंडेमिक में जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस थे वो थोड़ा सा उसमें, स्पेशली हेल्थ जो इंश्योरेंस थे उसके जो न्यू बिजनेस प्रीमियम था उसमें इंक्रीज देखा गया था। पर जैसे ही कोविड-19 की वैक्सीन आई, वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो गई या कोविड-19 रिड्यूस होने लगा, उसका इम्पैक्ट रिड्यूस होने लगा, वैसे तुरंत ही जो बिजनेस में ग्रोथ देखी गई थी नॉन लाइफ इंश्योरेंस के, वो सबड्यूड हो गई। सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट द नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, दे आर सजेस्टिंग गवर्नमेंट की अगर टैक्स डिडक्शन की लिमिट को आप बढ़ा देंगे अंडर सेक्शन 18D ऑफ IT एक्ट, तो इंडिविजुअल अपने टैक्स को सेव करने के लिए दे विल गो फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर स्कीम्स और नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स। अभी क्या सिचुएशन है, अंडर सेक्शन 18D वन कैन गेट टैक्स डिडक्शन अप टू 25,000 फॉर health insurance premium for individual below 60 year and up to 50,000 for individual above 60 years, and one can claim tax deduction up to 25,000 for a premium paid towards the health insurance to their parents as well। और इसी जो टैक्स डिडक्शन है, जो टैक्स एग्जम्पशन को जो क्लेम है, इस क्लेम की लिमिट को बढ़ाने के लिए नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है। अगर जैसे कि हम बात करें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उनके CEO का ये कहना है कि कोविड-19 पैंडेमिक ने हेल्थ केयर सेक्टर इंडस्ट्री और की डायनामिक्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इस पर्टिकुलर पैंडेमिक को हेल्थ को एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया जाए इन ऑर्डर टू in order to improve the healthcare industry in India, then there is a need to increase the limit for 18D as well as increasing the limit for senior citizen, and that will encourage the more people to buy the comprehensive health insurance. It will actually drastically revamp the healthcare industry, क्योंकि हमने कभी भी पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि कोविड-19 पैंडेमिक ने इंडिया की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसकी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ को शो किया है कि कितना क्रैक्ड है अपना हेल्थ केयर सिस्टम। तो कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक विल बी टेकन एज अ एग्जाम्पल और एज अ लेसन टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एंड फॉर दैट इंश्योरेंस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। इसी पर्टिकुलर न्यूज़ में हमने एक न्यूज़ और कंबाइन कर ली है, दैट इज रिलेटेड टू मोटर इंश्योरेंस। अब एक वर्किंग ग्रुप की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है इंश्योरेंस रेगुलेटर ने। कौन है इंश्योरेंस रेगुलेटर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे हु इज़ एक्चुअली द इंश्योरेंस रेगुलेटर। मैं यहाँ नहीं बता रही, फिलहाल के लिए न्यूज़ पे आते हैं। वर्किंग ग्रुप जो एक वर्किंग ग्रुप कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है इंश्योरेंस रेगुलेटर ने, किस लिए कॉन्स्टिट्यूट करी है, इन ऑर्डर टू स्टडी द स्कोप ऑफ लिंकिंग मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम विद द ट्रैफिक वायलेशन। जो ट्रैफिक वायलेशन होता है उसमें जो मोटर इंश्योरेंस हर कार का, चाहे वो बाइक हो, हर व्हीकल का मोटर इंश्योरेंस होता है, तो उसमें ट्रैफिक वायलेशन के प्रीमियम को इंक्लूड करने के सजेशन को स्टडी करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है जिसमें ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम को हर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्लूड करने की बात करी गई। इन एडिशन टू मोटर ओन डैमेज, बेसिक थर्ड पार्टी, एडिशनल TP एंड कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट प्रीमियम, and these are the violation points और violation amount that need to be added। इसको स्टडी किया जाएगा कितनी फिजिबिलिटी है, क्या जो मोटर इंश्योरेंस है उसमें वायलेशन के प्रीमियम को, ट्रैफिक रूल्स का जो वायलेशन होता है उसके प्रीमियम को ऐड किया जा सकता है या नहीं। ड्रंक ड्राइव के लिए, डैमेज ड्राइविंग के लिए, डिसओबेइंग द पुलिस, ओवर स्पीडिंग, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, रॉन्ग लेन ड्राइविंग, हैजार्डियस गुड्स कैरियज, ट्रैफिक सिग्नल्स को वायलेट करना, ओवरलोडिंग करना, सेफ्टी मेजर्स को वायलेट करना, व्हीकल modifications करना without taking the prior permission, wrong parking, all these are the actually offense cluster that should be included or that may be included into this traffic violation premium। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6। इंडिया टू ड्राइव कोविड वैक्सीन डिलीवरी इन APAC मूडीज एनालिटिक्स। कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आगे आने वाले 2 हफ्तों के बाद जो वैक्सीन है उसको उसका एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देगा वंस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक मार्केट इज
materialize, is fulfilled or is saturated, then SII will start export of COVID-19 वैक्सीन। और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया, इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में वर्ल्ड को जेनरिक ड्रग्स और जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करता है। अभी रिसेंट में मूडीज ने एक एनालिसिस करी है। इन दैट एनालिसिस मूडी बिलीव्स दैट इंडिया विल ड्राइव द एशिया पैसिफिक रीजन efforts for distribution of COVID-19 vaccine in the upcoming month। तो एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया लीड करेगा कोविड-19 वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमारे पास है, हाई अमाउंट ऑफ डोजेस में वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकती है इंडिया। तो एशिया पैसिफिक जितना भी रीजन है वहाँ पर इंडिया जो है दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड विथ 60% ऑफ द ग्लोबल शेयर, इंडिया वैक्सीन के केस में 60% ग्लोबल शेयर जो है वो हैंडल करता है। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो अगर आपको याद हो तो HCQ, तो हमने आपको डिस्कस करके बताया कि 70 to 80% HCQ जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर करता है वर्ल्ड की। तो इंडिया अपने सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को यूज करेगा इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट फॉर द मास वैक्सीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नीड्स फॉर other countries in addition to meeting its own domestic requirement। तो here India has an opportunity to increase its market share, to increase its goodwill, to increase its dominance, to increase its soft power into number of different reasons, जहाँ पर इंडिया इसको डिप्लोमेटिकली भी यूज कर सकता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लिए भी यूज कर सकता है। तो द इंडिया इज नाउ एट अ upper hand। So, with the export of COVID-19 vaccine expected to begin soon, India, along with China, look set to take the lead in driving the region's distribution efforts in upcoming month. So, although China is one of the major competitor and the economic cost of the COVID-19 piling up in recent weeks, some countries in the region have stepped up their efforts towards vaccine procurement and rollout। और डेफिनेटली हमने कई बार डिस्कस किया, इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर गेटिंग द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो होगी किसी पर्टिकुलर वैक्सीन को स्टोर करने की, उसके ट्रांसपोर्टेशन की, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट विल एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the international arena, and India is able to provide that vaccine into the very less economic cost in comparison to other countries। अब देख लेते हैं some other news clips। Total inks $2.5 billion deals with Adani Group। So the global energy major Total will pick up the 20% stake in Adani Green Energy Limited, the renewable power company of the Adani Group। तो the total company है that is going to have the 20% stake in Adani Greens। And apart from this minority stake, this French firm will also acquire 50% in 2.3 gigawatt portfolio of operating solar assets that is actually owned by Adani Greens। So in October 2019, Total picked at 37.4% in Adani Gas। Last year, the French firm Adani Greens created 50% joint venture in an enterprise value that is 17,000 crore। Adani Green is to transfer its operational solar assets to this particular joint venture। So now we can see number of international companies, international investors are actually investing or putting their money, putting their investment into Indian market, especially in green energy sector। Why? Because the potential is very high in case of India, and every investors want to tap that potential for their profit। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट में रेज इम्पोर्ट ड्यूटी बाय 5 to 10% ऑन डजन ऑफ आइटम्स। सो इंडिया इज कंसिडरिंग hiking the import duties by 5% to 10% more than 50 items। इसमें कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड हो सकते हैं? स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, अप्लायंसेस एंड सम अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो आगे आने वाले बजट में हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल फोन्स में 5 to 10% की इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हो। इट मीन्स द कॉस्ट विल इंक्रीज एंड दे विल बी लेस कॉम्पिटिटिव इन टू द इंडियन मार्केट एंड इट विल प्रमोट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। द मूव टू इंक्रीज द इम्पोर्ट ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन दैट एम्स टू प्रमोट एंड सपोर्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज आत्मनिर्भर भारत।
So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.